So, good morning, children. Today we are going to study vector algebra. Here, any vector is represented by the arrow. Say A is the vector arrow, or say AB is the vector. Means starting from A and terminating to B. That is the AB vector, vector AB. If we add the vectors, addition of the vectors AB, say BC, say CD, then equal to vector AD. From, if it is written continuous way, then from starting point to the ending point AD. Look here, AB plus AC, that is AB plus BC, AB plus BC, this is equal to AC vector. Here AB plus BC plus DE plus EF, shall you say it is AF? From initial point to the terminal point, from initial point to terminal point, so initial point A to F, AF. But no, here we cannot write. Why not? It is not continued. AB, BC, CD is absenting. CD is not here, then D, so it is not equal to AF. Now, unit vector. Unit vector. Unit vector, when any vector, vector means it's having the direction and it's having the magnitude. Direction and magnitude. So, say for example, this A vector is the direction here, AB you can say from A to B, but it's having magnitude 5, say, then unit vector, if it is having the magnitude 5, then unit vector along AB is equal to AB, that is AB upon 5. If we don't know the magnitude, then if we are not given the magnitude, then unit vector AB divided by modulus of AB is the unit. अब AB का कुछ तो मॉडुलस होगा, कुछ तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, उससे हम डिवाइड कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड AB this way. What will be the unit vector? What will be the unit vector in direction of A? If again A is any vector, then unit vector A, we show it like this, that is equal to A vector upon its modulus vector. One thing you should be very clear, that once a vector having the direction, if put between two bars, जैसे जेल में बंद कर दिया जाए तो उसका सारा तीर, सारा भाला, ये जो है तीर, that all gets meaningless. कोई कितना भी दमदार हो और उसको जेल में बंद कर दें, उसकी सब दमदारी निकल जाती है. Likewise here A is written here,
under the two bars, between the two bars, it means that vectorial direction perishes, finishes, and so it is, and it is written as magnitude of A. Parallel vectors. Parallel vectors. If A is parallel to B, two vectors. If I write here like this, it means unit vector. If two vectors are parallel vector, this implies A vector equal to K times B vector. उसको equal कर सकते हैं. Here multiplication of multiplication by scalar to any vector then that is equal to K into A. K the magnitude, and we have multiplied to any vector A by this one. When I don't write here like this unit vector, it means A may be having any vector. Maybe sometimes it may be having unit, but unless I say it, it means the A is vector may be having any vector, और उससे K से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. That is all. Anything more here, sir? Algebra of vector, yes. थोड़ा ऊपर ले जाइए. हाँ, पोजीशन वेक्टर बताऊंगा, यूनिट वेक्टर बता चुका हूँ. हाँ, इक्वल वेक्टर्स. ओके 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 ओके. इक्वल वेक्टर्स. There is difference between parallel and equal, na? Equal vectors. A is equal to B. The two vectors A and B are equal. It means the direct, it means direction and magnitude both are same. Negative vector, nothing to say. If vector A is there, what is the negative vector? Minus of vector A. Yes. जरा ऊपर देखूं अभी और कुछ छूटा तो नहीं है उसमें और बच्चों को बताने का. हाँ, yes, triangle and parallelogram of vectors, ये भी बता दूं. In vector, law of triangles. This is here. Triangle law of vectors. Say here A, B, C. Then I have told you this is equal to, I am writing here, AB vector plus BC vector. What will be that vector? AB, अभी बताया हूँ, A से B, फिर continuous में है B से C. Obviously that will be from initial point A to terminal point C, AC. And here also we can say AB plus BC plus CA. Can you say it is 0? AB plus BC plus CA equal to 0. Yes, AB plus BC equal to AC. Because as AB plus BC equal to AC, so left hand side equal to AC plus CA. Since both the vectors
आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड बीइंग द सेम। ए सी और सी ए का लेंथ तो एक ही होगा, लेकिन एक ए टू सी है, एक सी टू ए है, एंड सो इट इज 0 बिकॉज दे आर हैविंग दो मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शंस बीइंग डिफरेंट, opposite one. So AC plus CA equal to, here the law of parallelogram of the vectors, just down, parallelogram law of vectors. सिंपल चीजें हैं, वैसे नहीं भी बताते तो भी चलता, हम बीच बीच में बताते ही बताते। पैरेललोग्राम कोई इसी में समटाइम्स here is a parallelogram, here is a parallelogram, say A, B, C and D. A, B, yes, you can say here, we can say AD plus DC. What you can say? AD plus DC, yes, AD plus DC, AD continuous DC, that is equal to AC vector. AC vector. But here AD DC can be written as AB. From D to C पैरेललोग्राम में मैग्नीट्यूड वही रहता है साइड्स का, अपोजिट साइड्स का, और देखो D to C द सेम डायरेक्शन A to B, so I can write AB and that is also AC. तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में AB plus AD equal to diagonal representing AC. AB plus AD, that is this way. Then position vector. Position vector will be widely used for your entire vector. So position vector is very important. Position vector. Position vector मतलब the vector is represented by the position of a point. The vector is represented by the position of a point. हाँ, properties of somewhere, हैं, वो नीचे आया होगा या ऊपर रहा होगा, कोई बात। पोजीशन वेक्टर मीन्स हियर इज ए वेक्टर, से हियर इज ए वेक्टर A B and this is the vector A. AB vector is vector A. तो एक तो हम ये जान रहे हैं कि AB इज द वेक्टर, देख लो कहीं पोजीशन वेक्टर होगा, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, हाँ कहीं आप देख लीजिए, दिस इज योर पॉइंट। हाँ, पोजीशन वेक्टर दैट इज फ्रॉम A टू B। तो या तो आइदर आई शुड से we should say vector AB equal to vector A, or we say पोजीशन, कई जगह अभी चर्चा करूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू
with respect to point A is वेक्टर A। यानी यहीं पर मैं यहां पर लिख सकता हूं ए बी को वेक्टर ए। यानी पॉइंट का वेक्टर तो हो ही नहीं सकता। यू डिडंट गेट? इट इज देयर, कोई बात नहीं। हाँ छोड़ दीजिए ना। इट इज द क्वेश्चन माय डियर, लॉन्ग बैक होगा। हाँ एनीवे, तो वी आर फाइंडिंग। तो कहीं जैसे मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। हियर वी आर कॉलिंग ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, एंड आई एम नॉट राइटिंग ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर और सी ए वेक्टर। आई एम सिंपली राइटिंग ए बी और सी। ए बी एंड सी। तो उसके बाद कहूंगा मैं कि ये, अब आप कहेंगे करे सर पॉइंट कैन नॉट बी डिटर, वाई? पॉइंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सो पॉइंट ए कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द वेक्टर, बट हियर आई एम शोइंग ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर ए। इट मीन्स ए हैज बीन commanded, A has been represented by say some O point, so OA is A, OB is B, OC is C, ऐसा OCC। लेकिन इतना न बोल करके कि OCC, I simply say that position vector of C with reference to the point O is vector C। यानी OCC, लेकिन O को रेफरेंस पॉइंट मानता हूं। O छिपा हुआ है, कंट्रोलिंग पॉइंट है, वहां से वह ABC को डायरेक्शन दे रहा है। सो मैं A को पॉइंट कह रहा हूं कि वेक्टर ऑफ A इज, वेक्टर ऑफ द पॉइंट A इज वेक्टर A। लेकिन एनीबडी कैन ऑब्जेक्ट, सर यू कैनॉट से द वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो उसके बाद से क्या कहूंगा कि नहीं, तब समझाऊंगा कि नहीं भाई, ये जितना भी वेक्टर्स दे रहा हूं, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एज आर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। इन फैक्ट इट इज डिनोटेड, इट इज डायरेक्टेड, it is commanded by the point O, not necessarily O। any point can command। O की अपनी दादागिरी नहीं है, अपना दम नहीं है कि all the points shall be directed by O। look here, another case, here A B C, here say its centroid is G, GA is A, मान लो GA is A, GB is B, क्या बात है, GB is B and GC, क्या सब जगह लाइन, and GC is C। तो अब A को फिर A लिख सकता हूं, B को यहां लिख सकता हूं, C को, क्योंकि यहां पर G पॉइंट है, कमांडिंग पॉइंट, ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। थर्ड केस में लिख रहा हूं, इसलिए पोजीशन वेक्टर के बारे में, क्योंकि अक्सर बच्चों, अक्सर हम यूज करते रहेंगे, आपके दिमाग में यह भरा रहना चाहिए। से हियर is a triangle A B C, और A the origin of reference। ओ A को ही ले लिया। आप कहेंगे ये तो आप पहले बाहर लेते थे फिर भीतर लिए। अरे कोई पॉइंट को हमने एक रेफरेंस ले लिया, वही जो O है, वही है G है, जो जैसा हमने दो केसेज में लिया। ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, इसी को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। तो A ओरिजिन है, हमने मान लिया कि A ओरिजिन है, एंड AB इज वेक्टर B एंड AC इज वेक्टर C। तो आप कह सकेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज V
and position vector of C is C, but here with what reference? With reference A. Here is A, B, C with what reference? With reference G. There in case of O, with what reference? O. तो इसलिए origin of reference, origin not that what is having the coordinate 0, 0. Any origin, any starting point, any commanding point, that point may be outside, that point may be in the plane, that point anywhere can be. From that point of origin of reference to all these points A, B, C or any D, E, F or anywhere, if it is directed from that origin of reference, then I shall forget वो बेचारा जो कमांडिंग है, बॉस है, वो बेचारा किनारे है और हम इनको लिख रहे हैं. तो कभी कभी हम लिख देंगे इस तरह से, तो आप ये जाना करेंगे. खूब चर्चा करूंगा पोजीशन वेक्टर की. पोजीशन वेक्टर बोलेगा और आप समझ जाएंगे कि कहीं कहीं इसका है ओरिजिन ऑफ रेफरेंस. आप उसके बारे में ढूंढिए ना, उसके बारे में मुझे तंग मत करिए कि दिखाइए कहाँ है. मैं नहीं जानता हूं कि कहाँ है वो, लेकिन है बॉस कहीं बैठा हुआ. बॉस ऐसा थोड़ा दिखता है, कहीं सामने दिख जाएगा, कहीं नहीं दिखेगा. तो लेकिन जब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एनी पॉइंट, और उसका हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, तो माइंड में रखिए कहीं ना कहीं वो पॉइंट बॉस है जिससे इन पॉइंट्स को डायरेक्शन दिया हुआ है. यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis. These vectors are denoted by I, J and K. इनका दम कितना है, इनका मैग्नीट्यूड क्या है? 1. लेकिन ऐसा है X, Y और Z, OX, OY. तो इस डायरेक्शन में I वेक्टर है, इस डायरेक्शन में J वेक्टर, एंड हियर इन दिस डायरेक्शन K वेक्टर. K वेक्टर. Remember, IJK vector is not OX vector. OX उस I का डायरेक्शन है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं लिख रहा हूं OX यहां, इसका मतलब यह नहीं है कि OX इज इक्वल टू I वेक्टर. गलत है. OX केवल I का डायरेक्शन है फ्रॉम O to X, but its magnitude is 1. OX, तो I the vector having the direction from O to X, but its magnitude is 1. Say this is 1, then this is, इतना ही है I. या इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है. 1 तो मैंने दिया नहीं कि 1 मीटर है कि 1 सेंटीमीटर है कि 1 मिलीमीटर है. तो I the vector having its magnitude 1 in direction OA. Similarly, J along OI, not OI vector. OZ, not OZ vector, but along in the direction of OZ, and that is. So, if I say I vector और यहां लिख दूं, तो इसका डायरेक्शन मर गया. इसको दो पैरेलल बार्स के भीतर रख दिया तो इसका डायरेक्शन मर गया. इसका डायरेक्शन मर गया. तो क्या रह गया? इसका स्केलर रह गया. आई एक वेक्टर है, लेकिन उसके बाद से उसको एक जेल के दो बार्स के बीच में, दो छड़ों के बीच में हट गया. तो उसका तो चल नहीं रहा है. क्या नहीं चल रहा है? उसका तीर, एरो. तो जब एरो नहीं चल रहा है तो बेटा तब तो तू आई है, इंक पार्ट है, लेकिन हम यहां लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं. तू आई खत्म हो गया, तेरा अब स्केलर रह गया. तो कह देंगे 1 इक्वल टू J इक्वल टू K. ऐसा हो गया ना. अरे आई था, उसके डायरेक्शन था. आई का क्या क्या, दो चीजें आई के बारे में पता चला. एक तो OX का डायरेक्शन है, OX के दिशा में है, and its magnitude is 1. Once I have put between two bars, I have made it scalar, it means it is 1.
चटपटा करके रह गया, मुर्दा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड रह गया 1। सिमिलरली जे का 1, के का 1, के यूनिट वेक्टर है, वेक्टर रहा ही नहीं तो यूनिट रह गया उसका मैग्नीट्यूड। अभी इस तरह टॉपिक तो नहीं आएगा, लेकिन बेटर आई शुड से यू डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आगे आएगा शायद, या ना आवे। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन, इफ एनी वेक्टर, यहां लिख दे रहा हूं, इफ एनी वेक्टर makes angle alpha with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines. And represented by L, M, N। ये है डायरेक्शन कोसाइन। इफ एनी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। वन थिंग मोर बिफोर आई गो अहेड ऑफ दिस डायरेक्शन कोसाइन, मैं थोड़ा सा एक और चर्चा कर दूं आपको, क्योंकि ये बहुत, एक तो वेक्टर इसलिए अच्छा, कोऑर्डिनेट से इसलिए अच्छा है कि उसमें पोजीशन वेक्टर इसमें एक ही रहेगा पॉइंट, यूनिट, यानी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जबकि डायरेक्ट उसमें दो एक्स और वाई वैल्यू होती है, इसमें नहीं रहेगा, इसलिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब करने के बाद पता चलेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नाउ कम टू I put it here in my pocket, बराबर हाथ में रखने, पता नहीं, मैं नहीं समझता कहीं दिक्कत होगी। यस, हाँ। अब बेटे, एक तो इसमें वही रिजल्ट्स निकलता है जो मतलब सेक्शन फॉर्मूला का वही रिजल्ट, जिसे मान लो यहां पर है x1 y1 and x2 y2 and here m is to n, तो आप कहेंगे x इक्वल टू mx2, ये कोऑर्डिनेट में कहते हैं ना, अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और हम आगे नहीं जाएंगे, अगर हम 3 डायमेंशन में जाएंगे ना तो z भी रहेगा। अरे इसके लिए मजा हो जाता है, बट इन केस ऑफ वेक्टर अच्छा लगेगा आपको, इसलिए आप लोग इसको अपना दोस्त समझ करके चलिए कि कितना आपके लिए मदद कर रहा है। इफ द टू वेक्टर्स a एंड हियर b, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इनके वेक्टर्स हैं ए और बी, नेसेसरली नॉट, ये यूनिट भी हो सकता है, कुछ एक वेक्टर है ए, तो इनको अगर हम उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहें, ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर ए पोजीशन में ए को रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर ये, तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, तो कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एम इक्वल टू, कितना आपको मजा आ जाएगा कि सर ये m is to
एन में है, बस वही वही, दैट इज एम बी प्लस एन ए, एम प्लस एन। उसमें देखो एम एक्स टू प्लस एन, तो केवल एक्स पॉइंट आया था ना इसका, वाई पॉइंट अलग, जेड पॉइंट अलग, 3 डायमेंशन में नहीं, वेक्टर में केवल एक वैल्यू आएगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर के लिए, वो सेम। इसी तरह से सेंट्रॉयड, अब वो तो लिख ही दूंगा डायरेक्ट, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग vertices A, B, C and position vectors A, B, C, vector A, vector B, vector C is वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 3। इसलिए नहीं, आपको जो लोग मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं वो लोग कहेंगे कि कैसे जल्दी कर लिए, अरे भाई उसमें वही रूल चल रहा है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, अभी समझ जाएंगे। मिड पॉइंट भी वैसे ही चलेगा, मतलब ये एक बहुत अच्छा है, लिखो ना, हाँ, ये हियर ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर। फिर वो दूसरा वेक्टर, अरे वो तो होगा, वो तो दूसरे तरह से होगा वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसा करके, नहीं नहीं, सीधे वेक्टर ए, हियर ए बी सी। अगर इनका मिड पॉइंट पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, यानी से इट इज डी, तो क्या होगा, अरे यार ये बिल्कुल मजा हो गया, बी प्लस सी, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यस, ए प्लस बी बाई 2 या बी प्लस ए बाई 2, हियर सी प्लस ए बाई 2 और ए प्लस सी बाई 2। और वही सोचिए अगर हम यहां पर जी सेंट्राइड है, आप जानते हैं ना 2:1 के रेशियो में, द मीडियन इज डिवाइडेड बाय द सेंट्राइड इन द रेशियो 2:1, तो वही फार्मूला, सेंट्राइड इक्वल टू सेंट्राइड, अभी लिखा हूं, सेंट्राइड द पोजीशन वेक्टर पीवी लिख दिया ऑफ सेंट्राइड, दैट इज 2 इंटू बी प्लस सी, एकदम वही वही यार वही, 1 इंटू ए वेक्टर होल अपॉन 2 प्लस 1, याद करिए 2 प्लस 1 m प्लस n, एंड दैट इज b प्लस c प्लस a, एंड दैट इज अपॉन 3, a प्लस b प्लस c अपॉन 3। मिड पॉइंट इज a प्लस b बाई 2। अगर a एंड b है जिनके पोजिशन वेक्टर्स हैं, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। डिस्टेंस फार्मूला, इसमें तो क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन अगर वो डिस्टेंस फार्मूले से हम कुछ निकालें तो अच्छा होगा। हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, लेकिन उसमें इतना सब जानना हमारे लिए जरूरी होगा जब हम आएंगे अपने किसी काम के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ना। नेक्स्ट, हाँ जी, लुक हियर, हियर्स मैं अभी 2 डायमेंशंस की बात कर रहा हूं, x और y, origin, and look here, this is x y z, और मान लीजिए OP पॉइंट है, OP पॉइंट है, तो ये तो कहेंगे सर दिस विल बी x and this will be y, and OP से R, तो आप कहेंगे सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, कहेंगे ना, अरे सम ऑफ द 2 एडजेसेंट साइड इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, वो कर रहा हूं, हाँ ठीक है। चलिए मैं
जरा ओरिजिन को ही ना लेकर के कोई और भी यही मतलब नहीं कि इसका मतलब नहीं है, बहुत बड़ा मतलब है। हाँ, चलिए मैं थोड़ा अब आपको इसलिए समझाया कि और एक लाइन है यहां, ये है x1 y1 और ये है x2 y2 और ये लाइन x एक्सिस से लुकिया x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये है यहां दिस लाइन ए बी मेक्स एंगल अल्फा, ए बी लाइन मेक्स एंगल अल्फा विथ x एक्सिस। तो जब ये लाइन ऐसे, आप चाहें तो बढ़ा दें अपने समझने के लिए, दिस इज अल्फा x एक्सिस से, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना। ये देखो बेटा, ये देखो हियर दिस, अब इतना मत समझाओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत शुरू का है ये इतना होगा x1, मैं दूसरा इंक ले रहा हूं, ये होगा इतना x1 है ना, और ये होगा इतना पूरा का पूरा यहां से यहां तक x2, मत समझाने दो, खैर अब चलो x2, हाँ यहां से x2 है तो यहां से x2 होगा, ये x2, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1, ये पूरा है ना। इसी तरह से ये डिस्टेंस क्या होगा, y2 माइनस y1, और तब क्या होगा, और ये अगर हमारा AB इज R, AB इक्वल टू R, देन x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। and also x2 minus x1 is equal to r cos alpha। ये देखिए, अरे cos alpha is base upon hypotenuse। मैं एक लाइन और लिखूं क्या, x2 minus x1 upon r equal to cos alpha, so x2 minus x1 equal to r cos alpha। if AB makes angle beta with y axis on the same reasoning, क्योंकि 3 डायमेंशन है इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हम 3 डायमेंशन इसमें दिखा दें, तो इसी तरह से तो y2 माइनस y1 इक्वल टू r cos बीटा। सिमिलरली अगर 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूं तो z2 माइनस z1 इक्वल टू r cos गामा। रिमेंबर अल्फा बीटा गामा, आई हैव टोल्ड यू द डायरेक्शन एंगल्स and cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines, where alpha and beta and gamma are made by that line with x axis, y axis and z axis. So we are finding here, I rub it now, इसे मोह नहीं लगता है कि मिटा रहे हैं, since you are getting in video, so it cannot be rubbed off। आप फिर बैक होंगे तो सब लिखा हुआ मिलेगा। so we are finding that x2 minus x1 equal to r cos alpha, y2 minus y1 equal to r cos beta and z2 minus z1 is r। ये अभी समझाया हूं वो सब।
Can you say it is LR? Can you say it is MR? NR? Because I have told you before just starting this one, मैंने लिखा था कि if alpha beta gamma made by a vector, made by a line with x axis, y axis, z axis, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines, and in short it is written as L, M, N. So cos alpha is written as L, LR, MR, NR. So x2 minus x1 upon R equal to L, y2 minus y1 upon R equal to M, and z2 minus z1 upon R equal to N. N. Now x2 माइनस x1 एक और चीज लिख सकता हूं अपॉन L, ये भी कह सकते, एक ही बात है, एक ही बात, x2 माइनस x1 अपॉन L इक्वल टू R, y2 माइनस y1 अपॉन M इक्वल टू R, एंड z2 माइनस z1 अपॉन N इक्वल टू R. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग, आसान बना करके चल रहे हैं. और उसके बाद से अब x2 माइनस x1 जब LR है, यहां पर देखना LR लिखा हूं, नहीं 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 लिखा हूं, देखो ये here it is. Now x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square equal to L square plus M square plus N square whole into R square. अरे कॉमन लिया, कॉमन ले लिया, बाहर आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर, सबको स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर कॉमन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू. कैन यू से माई चिल्ड्रन दैट बट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस, फिर मैं बना दूंगा अगर आपको, स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. Here in the figure मैं एक ही बनाऊंगा, है ना. यहां पर देखो ये a था, b, here x1 y1, here x2 y2, and this way आप याद करिए कि this is equal to this, this is equal to yes, this is r. तो आप जानते हैं ना कि x2 माइनस x1 स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सिमिलरली अगर हम 3 डायमेंशनल में जाएं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो कांट यू से दैट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y. आप कहेंगे आपने तो ये दिखाया नहीं, ये दिखाना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये एक z एक्सिस ऐसे होगा, 2 प्लेन में 3 डायमेंशन कैसे दिखेगा. अगर आपकी नाक अगर बोर्ड पर दिखानी है तो आप उस नाक को पकड़ नहीं सकते और चिपकी रहेगी उसी प्लेन में, 2 डायमेंशन में. तो ये बोर्ड है 2 डायमेंशनल ना, और 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इसलिए वो दिखेगा ही ऐसे ही. और इसीलिए मैंने केवल 2 डायमेंशन निकाल करके सिमिलरली मैंने लिख दिया कि ये भी होगा. सो व्हाट वी गेट हियर, देन दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. This r square cancel, so L square plus m square plus n square equal to 1. यानी अगर L, M, N डायरेक्शन कोसाइंस है तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस बीइंग 1. एक और चीज छोटी सी है, इसको बता करके मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा.
आपको 2 मिनट के लिए फिर से मैं एक बार ब्रीफ कर दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले एक बात मिटा दिया ना। अच्छा चलिए फिर से लिख दे रहा हूं, कौन से अपने घर की चीज़ है। आपको थोड़ी देर पहले बताया था x2 माइनस डायरेक्शन रेशियोज बताने जा रहा हूं। डायरेक्शन रेशियोज x2 माइनस x1 अपॉन l एंड y2 माइनस y1 कामा है नॉट इक्वल कामा y अपॉन m z2 माइनस z1 अपॉन n each being r, no doubt each being r। तो ये बेटा ये x2 माइनस x1 y2 माइनस 1, तो इससे लग रहा है कि दिस इज इक्वल ना। अरे याद करिए r अभी शुरू किया हूं मैं यही बता के। तो आप कह सकता हूं सर तब तो x2 माइनस x1 प्रोपोर्शनल टू l, y2 माइनस y1 proportional to m and z2 minus z1 proportional to n, क्योंकि सब इक्वल है। या x2 minus x1 equal to lr, so x2 minus x1 is proportional to l। आप लोग तमाम पढ़ते हैं फिजिक्स में हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, r कांस्टेंट हो गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हो गया। तो दिस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन ratios represented by A, B, C। रिप्रेजेंटेड, ये डायरेक्शन रेशियोज रिप्रेजेंट करता है ए बी सी के। बट रिमेंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, बट एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम 1 होता है। लेकिन ये डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर चाहूं तो अगर मान लो एल को निकालना हुआ तो क्या कर देंगे, एल को अभी आपने देखा था, एक एग्जांपल दे रहा हूं, x2 माइनस x1 अपॉन आर इक्वल टू एल। एल तो लिखा ही, हाँ, x2 माइनस x1 अपॉन आर इक्वल टू एल। ये इसी तरह तो आर क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। क्या शॉर्ट में हम कह सकते हैं अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर? यस सर, क्योंकि x2 माइनस x1 को आप a लिख रहे हैं, y2 माइनस y1 को b, z2 माइनस z1 को c, इसलिए आप कह सकते हैं कि दैट कैन बी रिटेन एज x2 माइनस x1 अपॉन a, या x2 माइनस x1 को a की जगह पर लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू a बाई आर, m इक्वल टू b बाई आर और n इक्वल टू c अपॉन। उसी तरह से इतनी सारी बातें बताया, हो सकता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे रूल्स मैंने दिया है। 2 मिनट के लिए आई शैल बी बैक व्हाट आई हैव टोल्ड एंड देन आई शुड स्टार्ट द क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट आई शुड से यू बैक, जो अभी आज बताया हूं थोड़ी देर के लिए, वो 2-3 मोटी मोटी पॉइंट्स, मोटे पॉइंट्स। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा हम यूज करेंगे। एक तो हम ये जानेंगे कि कोई भी वेक्टर को ऐड करें और कंटिन्यूअस एक्टर करें तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, क्या कहेंगे, ए डी।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी लगातार है ना, ए बी सी डी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ए डी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस वेक्टर्स हैं सब, तो दैट इज विल बी पी एस। ऐसा फॉर इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, बशर्ते कि बीच में कहीं वो रुके नहीं, टूटे नहीं। एक ये बताया मैंने, इसीलिए ए बी, तो एक मैंने बताया मोटा पॉइंट कि ए बी प्लस बी सी जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स कहाँ था, वो ए सी है। एक तो ये पैरेललोग्राम वेक्टर तो इसी ट्रायंगल ऑफ। दूसरी बात बताया पोजीशन वेक्टर। आप कहेंगे आपने तो बताया बहुत कुछ, वो छोड़ दिया, सॉरी। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इन फैक्ट द वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, फिर से और साफ बोल दे रहा हूं हिंदी में कि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का वो वेक्टर है, लेकिन वह डायरेक्टेड है किसी बॉस से, बॉस बैठा हुआ है, उससे वो पॉइंट डायरेक्शन में दिया। वो बॉस कहां बैठ सकता है? अरे बॉस के लिए आप जगह डिसाइड करेंगे क्या? वो हो सकता है बंद कमरे में हो सकता है आपके आसपास हो सकता है आपके घर के भीतर हो, लेकिन वो पॉइंट जो है उस बॉस को क्या बोलते हैं हम लोग? ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। उससे ये सारे पॉइंट्स डायरेक्टेड होंगे, लेकिन एक फिगर में एक ही ओरिजिन ऑफ रेफरेंस होगा, एक ही बॉस होगा, हर जगह नहीं होगा। कलकत्ता में अलग बॉस होगा, बॉम्बे में अलग बॉस होगा, आपके फिगर में वो अलग है, दूसरे फिगर में वो दूसरा बॉस हो सकता है। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। रिमेंबर, नेवर ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। अ पॉइंट कैन नॉट हैव एनी वेक्टर। आपने ठीक से समझ लिया, कभी भी पॉइंट कोई उसका डायरेक्शन नहीं होता। पॉइंट का डिफिनीशन ही है कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, लेकिन वो पॉइंट का हम वेक्टर दे रहे हैं और उस वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए किसी ओरिजिन ऑफ रेफरेंस की बात होगी। हो सकता है तमाम क्वेश्चन हम करें और उसमें ओरिजिन ऑफ रेफरेंस की चर्चा न करें, आपके दिमाग में होना चाहिए कहीं कहीं होगा यार, उसके बारे में क्यों चिंता करें। And then that point can be called as the position vector. उसके बाद से डिवीजन फार्मूला वही mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अगर a और b दो पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर a और वेक्टर b हैं, वेक्टर a और वेक्टर b हैं, तो उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? a प्लस b बाई 2, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उनके पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c, तो उनका सेंट्राइड होगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बाई 3, उसी फार्मूले से। और तब हम लोग, मैं नहीं समझता हो तो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। यस, डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज इफ एनी लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called the direction cosines represented by LMN. If any two points are having coordinates x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then direction ratios, third direction, ये हमारा दोस्त है डायरेक्शन रेशियोज, यही बहुत काम देता है। हाँ, वो तो बिल्कुल सजा धजा करके जब लेंगे तब डायरेक्शन को साइंस आएगा। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पॉइंट्स having coordinates x1 y1 z1 and x2 y2 z2, then direction ratios a equal to x2 minus x1, b y2 minus y1 and c z2 minus z1। और तीसरी बात, चौथी बात लास्ट इसमें हो सकती, चौथा बात ये
कि टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियोज टू डायरेक्शन कोसाइंस तो आप याद करिए कि x2 आप याद करिए x2 माइनस x1 अपॉन r इक्वल टू L। याद करिए जहां r था x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 अंडर रूट, वेर r इक्वल टू अंडर रूट। आप याद करें ना डिस्टेंस फार्मूला x, और ये कहां से सर अभी बताया हूं सब, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। दिस आई कैन से r इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 इज a, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अंडर रूट। तो कभी भी किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो आप x2 माइनस x1 करिए डिवाइड बाई इट्स डिस्टेंस, y2 माइनस y1 को डिवाइड करिए उसके डिस्टेंस से, z2 माइनस z1 को डिवाइड करिए उसके डिस्टेंस से, एंड दैट डिस्टेंस इज अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 को ही मैं कह रहा हूं a, दिस इज ऑल। तो कभी भी हम l m n बता सकते हैं, लेकिन वो l m n बात की बात है, डायरेक्शन रेशियोज किसी भी दो पॉइंट का हम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 होगा, हम काम चला लेंगे। शायद अभी नहीं आएगा, हो सकता है 3D में आए, जब भी आए मैंने अभी थोड़ा सा काम चला दिया। नाउ आई शैल कम टू सॉल्व एग्जाम्पल्स। सॉल्व एग्जाम्पल हाँ, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स वही है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। पहले तो इन क्वेश्चंस को देख लें, ये इसलिए मैं सॉल्व एग्जाम्पल्स कि उसमें किया हुआ है, तो एटलीस्ट आई शैल नीड लेस टू सॉल्व इट हियर एंड मोर ओवर जहां जरूरी होगा वो करेंगे। द क्वेश्चन इज a and b represent two adjacent sides different colors। वाह, a b c and ऐसे करें क्या? ये जनरली ऐसे करते हैं, पता नहीं कौन करते हैं, क्या इसने किया होगा। ABCD of a parallelogram ABC, then show that diagonals AC and DB are equal। हाँ AC A, अरे तो यार पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, ABCD। और कह रहा क्या, AB and BC respectively of a parallelogram ABC, then show that AC and DB are equal to A and, अच्छा तो A और B पहले दिया, A and B represent two adjacent sides, here it is A, here it is B। बहुत ही आसान है। तो कह रहा है AC, आप कह सकते हैं AC is equal to here it is A and B, आप बताए ना AB प्लस BC होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, लगातार चले और फिर इनिशियल सेक्टर AB BC AC, हाँ इधर करते हैं AC। What is AB? A. What is BC? B. And then AC। इसको चाहिए अब क्या, DB, here DB, तो कहेंगे, हाँ कहेंगे कि BA इन ट्रायंगल ABC,
in triangle. Here in triangle BAD, BAD, then BA plus AD इक्वल टू DB. देख लो वो तो कितना अच्छा है, एकदम जैसे शॉर्टकट मार दिया. यहां से कोई यहां से जा रहा है, वहां जा रहा है, कोई बीच में तालाब है, उसको तैर करके वहां चला गया, ऐसा समझो. BA AD, अरे वो तो सीधे चला गया. हाँ, BA BD, उसमें क्या चाह रहा है? DB. हाँ, तो DA प्लस AB कर दे रहा हूं, है ना. DA प्लस AB यहां पर बेटा DA क्यों कर रहे हैं सर ऐसा? है DA प्लस AB इक्वल टू शॉर्टकट DA एंड AD शॉर्टकट DB, बट DA इज व्हाट? माइनस A. क्यों माइनस A? अरे जब AB इज A तो BA इज माइनस A एंड AD दैट इज इक्वल. देखो वो तो पैरेललोग्राम के साइड्स इक्वल होते हैं ना, सेम लेंथ होता है ना, और डायरेक्शन भी यहां BC है, वहां AD है, सो इट इज B दैट इज इक्वल टू DB. B माइनस A चाह रहा है ना, और इक्वल टू B माइनस A हमारा तो आ रहा है. इन ABC तो नाम तो लिखने में नहीं गलत हो गया. ABCD एंड देन हियर DA प्लस AB इक्वल टू BD. यार BD इक्वल टू, तो हम DB हमें चाहिए था DB ना, तो DA प्लस AB. अरे वेक्टर में जरा सा उसका डायरेक्शन अगर बदलेंगे BAD, देखो मैं ही गड़बड़ कर दिया था. इन ट्रायंगल BAD वो चाह रहा है DB, तो DB चाह रहा है तो D से शुरू करके DA प्लस AB इक्वल टू DB. शॉर्टकट DA इज व्हाट? माइनस B. अरे ये B है वो उल्टा डायरेक्शन में ना, तो माइनस B. AB तो है ही है A, दैट इज इक्वल टू DB एंड सो DB इक्वल टू A माइनस B. नेक्स्ट, वो सब किए होंगे वही सब. हाँ, नेक्स्ट ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन माय डियर, जब तक क्वेश्चन नहीं दिखूंगा तो ऊपर चल. हाँ, ऊपर चला गया वो. उसमें इतने दिन से कर रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं ऊपर. और फर्स्ट A माइनस B. If O with the center of regular hexagon, कह रहा है O with the center of the regular hexagon of A, B, C, D, E, F. A, B रेगुलर है मतलब इक्वल साइड से. A, B हियर नहीं दिख रहा है अगर बराबर, तो आप करेंगे हमको, हम मेजर करके तो बना नहीं. और तब उसके बाद कह रहा है A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. This is the regular hexagon and O the center, regular hexagon and O with the center. Find the sum of OA, then OA plus OB plus OC plus OD plus OE, अरे वाह, OF, OA, हाँ, OA, मान लीजिए OA है, O कहीं यहाँ पर रखे. आप बराबर जरा सा इनमें से फिगर इतना बढ़िया नहीं बना है. OA, OA, OD भी कहीं होगा. हाँ, ये देखना OA एंड OD इकट्ठा कर लिया. OA प्लस OD
फिर ओ बी एंड ओ बी, नहीं ऐसे ऐसे नहीं समझ पाएंगे ना, ऐसा टिक कर दिया ओ बी एक जगह। क्यों सर कर रहे हैं ऐसा, कैसे कर रहे हैं, क्यों? ये हो गया एंड प्लस ओ सी प्लस ओ एफ। इसलिए कर रहा हूं कि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, देखो ओ सी ओ डी ओ ए प्लस ओ डी एंड ओ बी प्लस ओ ई ना, अलग थोड़ा सा अच्छा डायरेक्शन नहीं बना, फिगर बहुत अच्छा नहीं है इसी। तो ये सब एक एक समझ लो, ओ ए प्लस ओ डी दोनों इक्वल होता है ना हेक्सागन में, ये डिस्टेंसेस तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। सो ओ ए प्लस ओ डी एंड ओ बी प्लस ओ ई एंड ओ सी प्लस ओ एफ ईच बीइंग इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ओ ए का डायरेक्शन ओ डी से डिफरेंस, ओ ई का डायरेक्शन ओ बी से डिफरेंट, अपोजिट है। सो ऑल बीइंग 0, हेंस सम इज 0 आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्रूव मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और कॉन्करेंट। कितना सब तो छोटे छोटे बच्चों की तरह से कर रहे हैं। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल और कॉन्करेंट, अब जरा शॉर्ट में कर रहा हूं। ए बी सी इज द ट्रायंगल, ए बी एंड सी। हम क्या कर रहे हैं, लेट द पोजीशन वेक्टर्स, लेट द पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। अब आप झगड़ा नहीं करेंगे क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कोई भी वेक्टर कभी भी किसी पॉइंट का नहीं होगा, लेकिन मैंने लिख दिया कि ए बी सी का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, मतलब यहां पर ए मतलब वो कहीं कहीं का बॉस बैठा होगा, उस बॉस के बारे में चिंता मत करिए कि देखें कहां है बॉस, यानी क्वेश्चन हट गया। अरे तुम क्यों, क्या मतलब कहीं बॉस होगा, वहां से ए को रिप्रेजेंट किया ओ ए सो वेक्टर ए, ओ बी सो वेक्टर बी, ओ सी इस वेक्टर सी। तो कह रहा है प्रूव दैट द क्वेश्चन इज मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मीडियन ये है बेटा, मीडियन यू नो मीडियन, दैट इज मीडियन बी ई और हो क्या गया ये, हाँ सी एफ। ये जो मीडियंस हैं, हाउ कैन a line can be called median in a triangle if it is started from the angular point to the midpoint of the opposite side। तो इसको एक कर दूं तो ये क्या होगा, ये इसका क्या कोऑर्डिनेट, अरे कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, पोजीशन वेक्टर ए प्लस, बेटा समझ रहे हो ना, अरे मिड पॉइंट यार, जैसे 2 डायमेंशन में हम करते हैं ना, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यहां पर एक ही पॉइंट से चल गया और यहां पर ये b है, तो कोई लाइन है b, कोई पॉइंट है b और कोई पॉइंट है a प्लस सी बाई 2 और b से e की तरफ 2:1, ये भी आप जानते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ g, अगर मान लो ये G पॉइंट है तो कैसे होगा, यस यस बताओ ना, 2 इंटू ए प्लस सी बाई 2 इंटू 1, हाँ इंटू 1 नहीं प्लस ना, mx2 प्लस क्या बात है, प्लस 1 इंटू बी बाई बी ओनली, 1 इंटू बी ओनली, होल डिवाइडेड बाई, होल डिवाइड n प्लस n
m plus n, this is cancelled, so vector A plus vector B plus vector C whole by 3. Similarly, अब मैं नहीं करूँ, similarly in AD पोजीशन वेक्टर ऑफ G, और एकदम वैसे ही इधर 2 इधर 1, तो हो जाएगा इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 3. एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ G इन BF कर जगह था, इन CF कर किया था क्या इसमें, A प्लस सी बाई 2, A प्लस सी बाई 2, हाँ BF भी किया था, तो इन CF G दैट इज आल्सो A प्लस B, एकदम वैसे ही, एकदम उसी तरह से, एंड दैट इज 3. Here we are finding in all the cases maybe B, maybe CF, maybe AD. If we are dividing in the ratio 2:1, we are getting the same coordinate nahi. Position vector is A plus B plus C by 3, and hence the concurrency is there. They are meeting at a point. Right? Right? I'm always alert to the time. Because other faculty is very much sincere. The next question is 4th. Find the unit vector in direction of, it is bilkul simple. Find the unit vector in the direction किस डायरेक्शन में, in direction of the vector which vector, that is 3i minus 6j, 3i minus 6j plus 2k. मैं आई जे के बारे में वही बहुत नहीं तो बताया, फिर भी बताता रहूँगा. हाँ, तो इनमें बेटा ये जो वेक्टर है आप याद करिए कि ये जो है ना, ये इससे अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो दैट विल बी इसको, तो यूनिट वेक्टर दैट इज इक्वल टू 3i minus 6j plus 2k whole divided by under root 3 square plus 6 square plus 2 square. इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. इसका मैग्नीट्यूड क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूं, तो दैट इज 3i minus 6j plus 2k, and this is divided by 7, 1/7. ये है वेक्टर, ये वेक्टर है. लेकिन जब उसका यूनिट वेक्टर का है तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी हैं, इनसे हम स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट से डिवाइड करेंगे, माने इसके डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड कोई भी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मैग्नीट्यूड, फिर से आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए आई बी जे एंड सी के आई जे के यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ऐसा कहीं भी उसका मैग्नीट्यूड निकालना हुआ, आई जे के कोफिशिएंट्स को देखिए, स्क्वायर करके ऐड करके डिवाइड कर दीजिए. ओके, 3 पॉइंट्स और कोलिनियर छोड़िए, 5th को छोड़िए. कोलिनियरिटी मतलब ए बी सी है. अच्छा, एक मिनट.
हाँ, ये देखें, सो दैट द 3 पॉइंट्स ए बी सी है ना, ए इज हियर -2, 3 and 5, B is here 1, 2, 3, and C is here 7, 0 and -1. 7, 0, -1. तो बेटा जब भी किसी पॉइंट x, y, z कह रहा है, ओहो ये 3 डायमेंशन में तो हम पढ़ाए नहीं, लेकिन आप इनके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, 1, तो ये वेक्टर हो जाएगा -2i + 3j + 5k, ये वेक्टर हो जाएगा, है ना, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, हियर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, दैट इज व्हाट, अब आप बता सकते हैं i + 2j + 3k. Position vector of C is equal to 7i + 0j - k. ABC AI + BJ + CK, ऐसा लिखना होगा। तब क्या कह रहा है, हाँ, शो दैट द 3 पॉइंट्स आर, तो आप निकाल लेंगे AB और उसके बाद निकालेंगे BC, अब उनको निकालेंगे BC और उसके बाद से इनका, अच्छा, हाउ टू फाइंड AB वेक्टर, क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, हियर BC इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. ऐसा करके करेंगे। अगर मान लो यहां पर दिया हुआ है, अगर BC = 2AB, BC = 2AB आएगा, BC दैट इज इक्वल टू 2AB. व्हाट डज इट मीन कि अगर ये BC AB का डबल है और B कॉमन है, सिंस B, ऐसे कोलिनियरिटी पहले भी हम लोग करते रहे, सिंस B इज कोऑर्डिनेट में कॉमन एंड BC = 2AB, तो दो कंडीशन है, आइदर AB is parallel to BC and second or ABC are in a line. तो क्यों सर ये पैरेलल क्यों नहीं मान रहे हैं? पैरेलल इसलिए नहीं मानते हैं कि B उनमें कॉमन है, और कोई भी दो पैरेलल लाइंस का कॉमन कोई पॉइंट नहीं होगा। अगर AB = 2BC है, यानी AB इज द डबल लेंथ ऑफ BC, लेकिन B उनमें कॉमन है, सो ABC एक ही कोलिनियरिटी में होंगे, दैट्स ऑल।